Hello, children. Welcome to English at Ease class. Today, I am with class 9, lesson 4. The book is Beehive. The lesson's name is The Lake Isle of Innisfree. This is a lyric. This is a poem of lesson 4 of the book Beehive, class 9. Okay, let's start the poem. Very beautiful lyric, The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. चिल्ड्रेन, आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 4 एक पोएम जिसका नाम है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री पढ़ेंगे. द पोएट ऑफ द पोएम इज W.B. Yeats. W.B. Yeats. In this poem, the poet expresses his love and affection to the nature, and he also tells the boringness, the how much he is bored in the city life of London. Children, Innisfree is an island. Boy Yeats spent some time during holidays there. Now he felt bored in the city of London. The memories of the island crowded in the mind. He longed to have that peace and solitude of the island of Innisfree. As such, it turned into a symbol of his longing. Hence, the title of the poem is just as the romantic halo of the island symbolically represents the poet's escape from stern reality. Children, व्यस्त जिंदगी में रहते रहते पोएट येट्स अब उन्हें निर्जनता चाहिए, अकेलापन चाहिए, लोनलीनेस. उन्हें ऐसी एक जगह की तलाश है जहां उन्हें शांति मिले. इस लंदन शहर का व्यस्त ज़िंदगी से वो तंग आ चुके हैं, बोर हो चुके हैं. अब उनको चाहिए एक ऐसा जगह जहां पर उन्हें शांति मिले. तो कभी बचपन में उस आइलैंड में जाया करते थे. अब उन्हें याद आया जे नहीं, बहुत हो गया, अब मैं उस आइलैंड में जाऊंगा. और वो क्या क्या करना चाहते हैं हम लोग अब फर्स्ट स्टैंजा में इसके बारे में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, सी दैट द फर्स्ट लाइन, I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. See that what is the intention, what is the wish of the poet in the first stanza. देखो, फर्स्ट लाइन में ही पोएट कह रहे हैं अब हो गया, बहुत हो गया. आई विल अराइज एंड गो ना, अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाना चाहता हूँ. मतलब उन्हें इंतज़ार नहीं हो रहा है, कह रहे हैं अभी मैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, मुझे अभी जाना है उस इनिस्फ्री आइलैंड में. बहुत हो गया मुझे इस शहर में रहना, इस बिजी शहर में रहना, ये ट्रैफिक, ये व्यस्त ज़िंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ. अब मुझे इनिस्फ्री आइलैंड में जाना है. जाके क्या करना है? You see the first two lines. And a small cabin built there. एक कैबिन बनाऊंगा. एक कैबिन मीन्स एक कुटीर. आप लोग
पुराना सीरियल में देखे होंगे, रामायण महाभारत ये सब सीरियल में देखे होंगे, ऋषि मुनि लोग जंगल में जाके रहते थे। तो उस तरह का कुटीर, उस तरह का मिट्टी का बना हुआ मिट्टी का घर, पुआल का छात हो और वेटल्स मेड, मतलब डाल से, पत्ता से, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स ये सभी से चाहते हैं एक ऐसा कुटीर बनाऊंगा, ऐसा एक छोटा सा मकान बनाऊंगा, छोटा सा घर बनाऊंगा। द पोएट सीक्स टू लीव द सिटी एंड गो टू द लेक Isle of, Isle means island, that is the island, it is written here Isle of Innisfree, where he will live a peaceful, happy and very simple life. That is his purpose to write the poem. And this poem, in this poem he expresses, the poet expresses his pathos and unhappiness of the city life, and he wants to go, he wants to leave the all the city life, all the happiness of the city life, and wants to go to Innisfree and live in a peaceful manner. Okay, now you see the next two lines of the first stanza. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and leave alone in the bee loud glad. Children, you see there, you see the last two lines of the first stanza. The poet is telling that he will grow the vegetable. Beans means not only the beans. Beans आप जानते होंगे, बीन्स मीन सीम, फ्रेंच बीन, मटर छिमी, बहुत सारा चीज़ को हम लोग बीन्स बोलते हैं। तो बीन्स उगाएंगे, बीन्स उगाने का मतलब है जो वेजिटेबल लगाएंगे, बहुत सारा खेती बाड़ी करेंगे। मीन्स दैट लव एंड अफेक्शन टू द नेचर, दैट शोज अस द पोएट विल ग्रो द वेजिटेबल एंड नियर हिज कॉटेज, नियर हिज हट, near his cabin there will be a hive. वो मन में सोचते हैं जो मेरा घर के सामने में एक मधुमक्खी का छत्ता हो और हनी बीज का बी हमिंग साउंड, मधुमक्खी का भनभनाने का आवाज़ मुझे बहुत मधुरता देगी। और मतलब पोएट इस जगह में आप देखो जो एक नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताए हैं। उनका इच्छा है, वो सोचते हैं, एक ड्रीम देखते हैं, एक ड्रीमी कॉटेज के बारे में सोचते हैं जो ऐसा इनिस्फ्री में मैं एक जाके कैबिन बनाऊंगा जहाँ पर वहाँ सामने में एक गार्डन होगा, एक खेत होगा जहाँ पर बीन लगाएंगे, और क्या है सामने एक बी हाइव होगा और उस मधुमक्खी का आवाज़ उन्हें शांति देगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंड लीव अलोन, द लास्ट लाइन, इन लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड. Glad means an open space midst in the forest. जंगल का बीच में एक खुला मैदान, खुला जगह हो जहाँ पर निर्जनता हो और उस सॉलिट्यूड में कभी पीसफुली रहेंगे, ये उनके मन की बहुत बड़ा इच्छा है। अब मैं आप लोगों को उस कॉटेज के बारे में मैं दिखाता हूँ, बीन्स के बारे में दिखाता हूँ और हनी बीज के बारे में भी, उसका हाइप का भी पिक्चर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। Class, you see that is the picture of the cottage. It is made of clay. It is made of clay and straw. पुआल का छात जो हम लोग देखते हैं गांव में। बच्चे आप देखो, that is the mud house. Okay, this is the mud house. So the poet yet also wants to build such cottage made of mud and wattles, branches. ऐसा ही घर पोएट येट्स इस कविता में बनाना चाहते हैं। Children, this is the bean field
ऐसा ही कवि ने लिखा है थर्ड लाइन में, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। 9 रोज, इसका मतलब बहुत सारा खेती उन्होंने करना चाहते हैं। आप देखो, ए दिस इज द ग्रीन फील्ड ऑफ द बीन, beans are there, bean plants are there, these are the bean plants. Is it okay? Now I show you the honeycomb beehive. This is the honeycomb, that is the beehive you see, and I think you have seen already. This is the picture of the beehive. The poet Yeats also wants such hives would be near about his hut, near about his cottage, and the humming of the bees, the sound produced by the honey bees, will make him peace. Is it okay? Now we come to the second stanza. In the second stanza, you see the poet tells us, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from vales of the morning to where the cricket sings. Now in the second stanza, the poet longs for peace, the peace of the morning when silence will be broken by the music of the cricket. The silence will be broken. The silence will be broken of the night by the sound of cricket. Cricket, you know, is kind of the insect. I will show you the picture of cricket also. Of the cricket, the glowing light of the midnight and that song of the linnets in the evening. और क्या है, देखो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं तब मीनिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। ड्रॉपिंग स्लो, पीस कैसे आएगी? पीस मीन्स दैट इज द, इन हिंदी इट इज सेड शांति। शांति हमें कैसे मिल सकती है? ये कोई तो बाजारी वस्तु है ही नहीं जब हम खरीद के ले सकते हैं। कभी भी जानते हैं दैट पीस कैन नॉट बी परचेज्ड। पीस दैट कम्स इन द नेचर, प्रकृति में मुझे पीस मिलेगी। ये कवि यही सोचते हैं, जे सेकेंड स्टंजे बतला रहे हैं हम लोगों को, ये धीरे धीरे ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे मुझे शांति मिलेगी। सुबह के समय जब रात के अंधेरा कट जाएगी, द डार्कनेस विल बी डिसअपियर्ड, एंड इन द नाइट दैट इज द cricket sings. Here you see the poet is telling that not the cricket sound. Cricket means झिंगुर। झिंगुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, बरसात के समय में इसका आवाज़ सुनाई देता है और इस झिंगुर की आवाज़ को उन्होंने गीत बताए हैं। दैट इज़ द फीलिंग ऑफ द पोएट, दैट इज़ द लवलीनेस ऑफ द पोएट टू द नेचर, टू द नेचुरल इंसेक्ट्स ऑल्सो। वो इंसेक्ट के आवाज़ को भी गीत के रूप में प्रोड्यूस किए हैं, गीत कहे हैं। तो क्रिकेट की आवाज़ से, इस झिंगुर की आवाज़ से उन्हें शांति मिलेगी। रात के अंधेरा धीरे धीरे कट जाएगी। शाम के समय में पक्षी, आप जानते होंगे, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट जाती है। तो लिनेट एक छोटी सी चिड़िया होती है, उस छोटी सी चिड़िया की पंख की फड़फड़ाहट, द फ्लैपिंग साउंड ऑफ द लिनेट्स, दैट विल मेक हिम पीस। तो ये नेचुरल फेनोमेना आपको याद रखना है। उन्हें शांति कैसे मिलेगी? ना धीरे धीरे शांति मिलेगी। उस नेचुरल सीन में, उस इनिसफ्री टापू में जब वो रहने लगेंगे तब उन्हें ये सब चीज़ मिलेगी। क्या? ना क्रिकेट की आवाज़, झिंगुर की आवाज़, सुबह के समय के जो एक हल्का हल्का रोशनी, एक ओपन फील्ड का जो एक मुक्त वातावरण का एहसास, और क्या है
ना लिनेट्स पक्षी का पंख की आवाज़ उन्हें शांति देगी। दैट इज़ द second stanza we have completed. Now the third stanza. Before third stanza, I will show you the picture of the cricket and the linnet bird. Children, see that this is the picture of cricket. झिंगुर, इसे झिंगुर भी हम लोग बोलते हैं। और this is cricket. This is an insect. Now see that they are the linnet birds, very little birds. You see here, this is also a linnet bird. This is a linnet bird, is perching on the branch. Okay, now we'll discuss on the third stanza. Now children, we are in the third stanza of the poem. Now see that. I will arise and go now for always night and day. देखिए, इस पोएम में लास्ट स्टेंजा में पोएट येट्स एक ऐसी बात बताते हैं जो शहर में रहना बिल्कुल अब उन्हें पसंद नहीं है, और एक दिन के लिए नहीं, कोई पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहते हैं, एक ट्रिप करने नहीं जाते हैं, टूर करने नहीं चाहते हैं। ही इज़ गोइंग टू इनस्प्री परमानेंटली, ही विल स्टे देयर, ही विल नॉट कम बैक। सो द फर्स्ट लाइन यू सी दैट द पोएट इज टेलिंग फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, दिन रात हमेशा के लिए मैं वही रहना चाहता हूँ, वही जाना चाहता हूँ, मैं वही रहूँगा। इस पोएम में आप देखे होंगे एक बहुत अच्छा से एक शहरी ज़िंदगी का जो जसल एंड बसल, इसे हम लोग बोलते हैं, व्यस्तता, जीवन में तंग आ जाना, पोल्यूशन, ये सभी से हम आज लोग जूझ रहे हैं। बड़े बड़े शहर में जहाँ पर लोग रहते हैं, आप लोग दिनों रात देखते होंगे टीवी में भी, कितना प्रदूषण है, कितना पोल्यूशन है, लोगों को शांति नहीं है। लोग इस शहरी ज़िंदगी को छोड़कर दूर दूर में चले आते हैं, टूर जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। इसका कारण क्या है? दैट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द मोनोटोनस लाइफ इन द सिटी। इन दिस पोएम, so many years ago, the poet Yeats told the same thing, that the city life will not provide you the peace, but the people stay there, they live there, they go there. आप देखे होंगे शहर का ज़िंदगी कितना व्यस्त होता है, फिर भी लोग तो शहर में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उसको रोजी रोटी चाहिए। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, जो शहर की ओर पलायन लोग क्यों करते हैं। इस कविता में बहुत सुंदर से इसका मीनिंग, बहुत गहराई है। आप लोग गौर से सोचेंगे तो ये पोएम बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी एक आज का ज़िंदगी का एक रूपरेखा है। आप देखो लास्ट स्टैंजा में कवि क्या बताते हैं। कहते हैं कि नहीं, एक दिन के लिए नहीं, डे नाइट, हम हमेशा के लिए अब इनस्फ्री टापू में ही रहेंगे। नेक्स्ट, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। देखो अभी तो गए नहीं है। नाउ स्टिल द पोएट इज इन लंदन सिटी, इज नाउ नॉट इन इनस्फ्री। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, ही विल गो देयर, जाएंगे, अभी गए नहीं है, लेकिन उनका दिल में उस इनस्फ्री में जो बचपन में गए होंगे, उस बचपन में, उस जब कभी एक छोटा सा बालक होंगे, एक छोटा सा लड़का होंगे, उस समय में उस इनस्फ्री के प्रति उनका भावना, उनका प्रेम इतना ज़्यादा है, इतना नेचर लविंग हो गया है, जो लंदन सिटी का रोड में खड़े होकर उस पेवमेंट, ग्रे पेवमेंट, भूरा रंग का फुटपाथ में खड़े होकर कभी सोचते हैं जे
सोचते हैं इनिसफ्री आइलैंड में लहरें किस तरह से टकराती होगी उस किनारे में आकर। उस लहरों का आवाज़ अभी भी उनका कान में गूंज रहा है। इस पोएम में लास्ट लाइन बहुत ही मधुर है। आप फिर से देखो, मैं पढ़ता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। कवि का जैसे सॉलिटरी रिपर में भी हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ का दिल की बात को सुने। जब उनको अब सुनाई नहीं दे रहा होगा उस हाईलैंडलेस का गाना, उस पहाड़ी लड़की का गाना, तब भी उनका दिल में भी वो आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो जो भी हो, अब इस पोएम में भी येट्स उस बचपन में इनिसफ्री आइलैंड का सुंदरता, उस लहरों को टकराती हुई आवाज़ उनका दिल में अभी भी संचित है, दिल में अभी स्टोर है। दिल से अभी भी सुन रहे हैं, हार्ट स्कोर, दिल के केंद्र से, हार्ट का कोर से कभी अभी भी सुनते हैं उस इनिसफ्री आइलैंड में किस तरह से लहरों टकराती होगी उस किनारे में आकर। तो नाउ चिल्ड्रेन, नाउ आई थिंक यू understand this poem very easily. You have no any problem to understand the poem, and after that I request you that you must subscribe my channel, and so that you will get more videos related to class 9, class 10 and other portion of CBSE classes. Okay, bye.